Good evening, Highest Praise Church family. Can we all say good evening? Good evening. Yeah. So today again we thank God for this wonderful evening. परमेश्वर ने हमारे को दिया हुआ इस अच्छे शाम के समय के लिए प्रभु की धन्यवाद करते हैं। ये हमारा 5वां हफ्ता है लॉकडाउन का और ये मंगलवार की शाम भी हम इस 30 मिनट्स के डिवोशन के साथ आपके घरों में आए हैं। आज मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा परिवार हम लोग साथ में हैं। मोजेस, जॉर्डन, फ्लॉजी, नेथन और मैं हूँ। हम वी थॉट विल सिंग वन सॉन्ग फॉर यू। हम लोग एक साथ एक गीत को हम गाएंगे। ये गीत का नाम है चट्टान। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आई थिंक इट्स बाय अ बैंड कॉल्ड ब्रिज। और ये जो गीत का बोल देखोगे उसका वर्डिंग्स आर as if this is a new song, but the song is actually written for a time like this. And I really believe that this song will be a blessing to all of us. हम लोग एक साथ हम इस गीत को गाकर हम आराधना करेंगे। आपके सामने लिरिक्स आएगा, उस लिरिक्स को भी आप पढ़ के Lord sing that song together and worship the Lord. Amen. Are we ready? Come on, let's worship the Lord. Amen. Come on, Moses, lead us. के बीच में समझा तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी हिम्मत। खबर के बीच में तू कहता है समझा तू मेरी ताकत है, तू ही मेरी हिम्मत। बीत कर ले तू साथ मेरे था, आज भी बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा।
Praise the Lord. Hallelujah. It's a beautiful song that says that there is nothing that can stand against you and me. ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई शस्त्र बना नहीं है जो आपके और मेरे सामने आकर खड़ा हो पाए. हमने ऐसा गाया और वचन कहते कि वो हमारे सामने झुकेंगे. Whatever it is, जो भी है हमारे जिंदगी में, हमारे सामने वो झुकेंगे अगर आप विश्वास में स्थिर खड़े रहेंगे तो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. इन दिनों में हम इस गीत को गाएंगे, हम सीखेंगे, so that we'll all worship the Lord together in the days to come. And may the Lord continue to bless us. Can I request Floji to lead us in prayer? Praise and thank you, Father God. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Holy Spirit, for this wonderful day that you've given us. Father, we thank you for your protection, for your mercy, your grace that has been resting upon each one of us, O Lord. Thank you for giving us this opportunity to come before your presence, O Lord Father. And we say, O Lord Father, together as a family, on Christ the solid rock we stand, O Lord Father, and nothing will shake us. Father God, as a big family, we come before your presence, O Lord Father, with our church, with our loved ones, O Lord Father, and we submit ourselves into your hand and we say, Lord, nothing can stand against us, nothing can come against us. No weapon formed against us shall ever prosper, O Lord Father. By your glorious works, O Lord Father, we will see your kingdom reign again. Father God, we thank you, O Lord Jesus, that throughout the world that your presence is moving, O Lord Father. We thank you for giving us the sense of protection and belonging to you, O Lord Father, that no fear will come into our lives, O Lord Father. We thank you for keeping each one of our loved ones safe so far, O Lord Jesus. We thank you for the good life, the good health that you're giving us. Thank you for the provisions you're making for us, O Lord Jesus. At this time, we take time, O Lord Father, and pray for all the families of the ones who have lost their lives in this sickness, O Lord Father. May your beautiful comfort be with each one of them. Father God, words will not be able to explain or express their sorrow, O Lord Father, but we know that you're a Lord of comfort, you're the Lord of peace. And Father God, wherever there is sorrow right now, you fill your peace over there. And we pray, O Lord Father, that you will make these things to pass at the earliest, O Lord Father. We put our faith, we put our trust, we put our hope in you, O Lord Jesus. Thank you for your healing power and touch that's moving around the nations, O Lord Father. We thank you for our country. We thank you for the leadership. We thank you for everyone who's taking the onus to put an end to this sickness, O Lord Jesus Christ. We thank you, O Lord Father, for just being there with us. We submit our servant of God who will share from your word, O Lord Father, and encourage us, O Lord Jesus, in this time of devotion. Bless him abundantly. Let your Holy Spirit take control. We pray for your peace and your love and your joy, everything to rest with our loved ones who are watching us at this time. Submit everything in your hands. In Jesus' most sweet and precious name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord, highest praise church family. Once again, we thank God for this wonderful evening. प्रभु ने हमें आशीष किया कि हम लोग एक साथ आज आपके घरों में आए और उस चट्टान, उस गीत को गाकर स्तुति आराधना करें. I hope that you were blessed with it. Hallelujah. Today evening का वचन का ध्यान के लिए we will take one of the very common episodes. एक वचन में से हम सबको पता है, ऐसा एक स्टोरी है जो आज मेरे मन में आया, उसी चीज को मैं आपके सामने रखूंगा. लेकिन क्यों रखूंगा वो मैं आपसे कहूंगा. इन दिनों में आई वाज टॉकिंग टू मेनी पीपल, कई लोगों से बात कर रहा था. स्पेशली आई एम पार्ट ऑफ मेनी व्हाट्सएप ग्रुप्स. हमारे यहाँ पर बिल्डिंग के अलग अलग जगहों का व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं हूँ. तो वहाँ पर मैं लोगों का एक एक मैसेजेस को देख रहा था, लोगों का फियर को देख रहा था, लोगों का एक एक कमेंट्स को देख रहा था. पीपल आर मैं देख के मैं बोला कि सी आई एम ऑल्सो वरिड, आई एम ऑल्सो लिटिल, कभी कभी एंजाइटी हो जाती है कि क्या होगा. लेकिन वी आर नॉट लाइक द वर्ल्ड. हम इस दुनिया की तरह नहीं है जहाँ पर वी हैव काइंड ऑफ लॉस्ट ऑल होप. लेकिन आई एम सीइंग मेनी पीपल आर लूजिंग होप. मेनी पीपल आर दिन ब दिन जैसे बढ़ते जाए. somebody was telling me, I think प्लॉजी मुझे आज कह रहा था कि ऐसे एक जोक का कि the biggest fool is somebody who brought a planner for 2020.
या फिर 2020 साल का जिसने बड़ा प्लानर लेकर रखा, ही इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूल, बिकॉज प्लानर लेकर जनवरी में शायद उसने पूरा प्लान किया होगा साल के लिए, बट व्हेन दोस थिंग्स आर नॉट गोइंग ऑन, पीपल आर काइंड ऑफ रियली थिंकिंग दे हैव बिकम फूल्स। उन्हें लगता है कि अभी आगे कैसा होगा, लाइफ कैसा होगा, कैन आवर लाइफ एवर बिकम नॉर्मल? दैट्स वन क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी इज आस्किंग। कैन आवर लाइफ बी नॉर्मल अगेन? क्या हम फिर से कलीसिया में आ पाएंगे? क्या हम फिर से मिल पाएंगे? क्या हमारा लाइफ फिर से वही नॉर्मल पेस पे जाएगा? आई एम टेलिंग यू, डोंट थिंक टू मच। मैं इतना ही कहूंगा, आप इतना ज्यादा सोचे नहीं क्या होगा। लुक एट व्हाट द बाइबल सेज। परमेश्वर का वचन कहता है वी नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। इवन थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी सी, हमारे इस बीच में हम लोग इतने सारे इश्यूज को देख रहे हैं। बॉम्बे में भी दिस वायरस का केसेस बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन वी नीड टू बिलीव दैट गॉड विल ब्रिंग अ चेंज इन ऑल दीज सिचुएशंस। तो इसी के आधार पर कई लोगों का जो विश्वास भी मैंने देखे कम होते जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है। When you talk to them itself, you come to know that अंदर से बहुत डर आ गया। पास्टर मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक हूँ बोलने में ही मुझे पता चल रहा है कि अंदर से वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर स्लीप दीज डेज। कई लोगों को अभी नींद भी नहीं आ रहा क्योंकि टेंशन से। बट आई वांट टू जस्ट ब्रिंग दिस वर्ड एंड आई वांट टू प्रे दैट ये जो वचन है आपकी जिंदगी में, इट विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ एन एनकरेजमेंट। लेट्स टर्न आवर बाइबल्स टू 2 किंग्स, दूसरा राजा किताब, उसका 4वां अध्याय, 4th चैप्टर। वहां पर इन द बिगिनिंग 1 to 7 वर्सेस में इट स्पीक्स अबाउट एलिशा द प्रॉफिट। एलिशा प्रॉफिट, और वो एक विधवा उनके पास आते हैं। We know that story, हम सबों को वो स्टोरी पता है। उस वचन को अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल ले लीजिए। वहां पर हम पढ़ते हैं a woman of the wife of sons of the prophets cried out to Elisha। एक विधवा एलिशा प्रॉफिट को जब देखी, she started crying out, वो रोने लगी या फिर वो चिल्लाकर उनके पास आकर अपना दुख का कहानी या फिर उनका कंप्लेंट्स वो बोलने लगी कि मेरा हस्बैंड का डेथ हो गया, लेकिन उनका जब डेथ हुआ उन्होंने बहुत कर्जा ले लिया और उनके बच्चे हैं अभी, लेकिन आज जो जिनसे इन्होंने कर्जा निकाला उन लोग आके इनको परेशान कर रहे। एंड शी इज इन अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज, बहुत तकलीफ में है। और उस तकलीफ के बीच में वो एलिशा के पास आकर कहती है, परमेश्वर के दास आप मेरे लिए कुछ करो। तभी एलिशा उनसे पूछता है मैं क्या करूं? और एलिशा उनको अगला एक क्वेश्चन पूछता है। द सेकंड वर्स इज इट व्हाट डू यू हैव? आपके पास क्या है? आपके घर में क्या है? ये स्टोरी आप सबों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन इसमें से भी पवित्र आत्मा आपके दिलों से बात करेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। राइट डाउन दैट, वहां पर आप अंडरलाइन कीजिए। वहां पर वो बोलती है योर मेड सर्वेंट हैज नथिंग इन द हाउस। वो कहते हैं कि मेरे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज ये सुनने को बहुत मिलता है, कुछ नहीं है पास्टर। घर में कोई खुशी है? कुछ नहीं है। घर में कोई आनंद है? कुछ नहीं है। ओ परमेश्वर का कोई ब्लेसिंग है? ओ परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये हम लोग कई लोगों का एक कंप्लेन होता है। ये बहन भी हमारे तरह थी, उन्होंने भी वही कहा कि कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मेरे घर में क्या है? 1 jar of oil, या फिर मेरे पास 1 कटोरा तेल है, यानी घर एम्प्टी नहीं था। Many a times हमारे जिंदगी में जो है उसे हम वैल्यू नहीं करते, या फिर परमेश्वर ने जो आशीष दिया शायद हम कंपेयर करते। वी कंपेयर इट टू अदर पीपल, वी कंपेयर इट टू आवर नेबर्स, वी कंपेयर इट टू आवर फैमिलीज एंड वी से दैट गॉड यू हैव नॉट ब्लेस्ड मी, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। ये सिस्टर ने भी पहला वही बोला, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 1 कटोरा तेल है। लेकिन आगे जाकर आपको पता है वो 1 कटोरा तेल उनका जिंदगी का सबसे बड़ा सोल्यूशन था। You getting it? उनके पास जो परमेश्वर ने दिया हुआ था वो काफी था उनके लिए, लेकिन she always thought that she did not have anything in her life. Never say those words that God has never given me anything. God has never blessed me here. Even the life that you and I live, आप और आज अगर आज हम जिंदा है, come on, we're going to have a heart of gratitude and say thank you God for this day. Hallelujah. Praise the Lord. यहाँ पर ये बहन कहती है कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा तेल है। The same way if you read
when you see, I think the book of Exodus there, when you read the life of Moses, वहां पर भी परमेश्वर ने मूसा को पूछता, मूसा के पास क्या है? मूसा के पास ना बड़ा स्टेटस था, मूसा के पास ना पावर था, मूसा के पास ना कोई टैलेंट या क्वालिटी, कुछ नहीं था, लेकिन मूसा के पास एक चीज था. क्या था? He had just one shepherd staff, एक बड़ा सा डंडा, उसको आई थिंक हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, लाठी. उनके पास एक लाठी था. मूसा को लगा वो लाठी एक साधारण लाठी है, या फिर दैट्स जस्ट वन स्टाफ, an ordinary staff. लेकिन when God spoke to him, when he gave that लाठी to God, परमेश्वर कहते प्रभु ये मेरे पास है. God used that shepherd staff to divide the Red Sea. जो सबसे बड़ा समुद्र था, उस लाल समुद्र को दो में बंटवारा करने के लिए वो एक लाठी काफी था. उसी लाठी से जब इजराइल के लोगों को पानी नहीं था, परमेश्वर का बेटा तेरे हाथ में जो लाठी है ना, उस लाठी को लेके उस पत्थर पर मार, वहां से पानी निकलने लगे. उसी लाठी के द्वारा Moses was able to lead thousands of people, या फिर इजराइल के सारे लोगों को उस कनान देश के बॉर्डर तक ले जाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया. किसके कारण? वो एक लाठी हाथ में लेकर. What do you have in your life? आपके हाथ में जो है, परमेश्वर ने हमें जो दिया हुआ, तो छोटा होगा, थोड़ा पैसा होगा, थोड़ा तेल होगा, थोड़ा घर का सामान होगा, थोड़े लोग होंगे, थोड़े खुशियां होंगे, जो कुछ परमेश्वर ने दिया, value it, trust in the Lord. God can multiply it for you and me. परमेश्वर हमारे लिए वही छोटे से प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. इसी तरह से when you read the first Kings, book of जो राजा का पहला किंग, पहला राजा का किताब में भी हम लोग वहां पर भी एक विधवा को देखते हैं. 17वां अध्याय में इलाइजा के बारे में पढ़ते. इलाइजा द प्रॉफिट. इफ यू हैव दैट चैप्टर, यू सी इलाइजा का 17 चैप्टर का 8वां वचन, वहां पर देन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू हिम सेइंग अराइज गो टू जराफत. वहां पर जराफत नाम का एक जगह पर जाकर एक विधवा के घर में जाने के लिए परमेश्वर कहता है इलाइजा से. और वहां पर इलाइजा पहुंचकर उस घर पर पहुंचता है, एक विधवा के घर में, वो और उनका बेटा, उनका बच्चा था. और वहां पर जाकर पर इलाइजा उस बहन से बोलती है मुझे भूख लग रहा है, मुझे कुछ खाना दो. तो बहन भी क्या कहती है? शी सेज ओ आई डू नॉट हैव ब्रेड. वो कहती कि मेरे घर में तो रोटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल बचा है. हालेलुया. वहां पर भी आटा और तेल है, लेकिन व्हाट डिड शी से? आई डोंट हैव फूड, मेरे घर में रोटी नहीं है. लेकिन जब उन्होंने वो थोड़ा सा आटा और वो थोड़ा सा तेल परमेश्वर के सामने रखा, वहां पर वचन कहता है दैट बिकेम अ ब्लेसिंग फॉर हर. इलाइजा ने वहां पर जो ब्लेसिंग दिया, उसके कारण कई दिनों, कई महीनों तक उनका घर का जो आटा कभी खत्म नहीं हुआ, उनका घर का तेल कभी खत्म नहीं हुआ. What you have, the little that you have, when you value it and when you have a heart of gratitude and say thank you God for this, I am telling you God will multiply it for us. Hallelujah. That is one part of it. लेकिन अभी दूसरा एक इंटरप्रिटेशन मैं आपको दूंगा, एक रेवलेशन. वो है इन द बाइबल व्हेन यू सी द ऑयल इज ऑलवेज गिव्स द पिक्चर ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा का एक पिक्चर या फिर एक एग्जाम्पल या फिर एक रिसेम्बलेंस को दिया है तेल को. ऑयल, दैट इज व्हाई वी समटाइम्स वी अनॉइंट पीपल विद द ऑयल. ऑयल यहां पर ये बहन के पास क्या था? शी सेड शी हैज नथिंग but she had a jar of oil. I want to tell you people, God has deposited that oil in you and me. हम लोग कई बार हम बोलते हैं मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है. Especially for the people who are in the ministry. I hear many people in the ministry saying that, oh pastor, we have nothing, हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, oh हमारा पास ये नहीं है, लोग कम है, चर्च में ऐसा वैसा. We all, many, I'm not criticizing anybody. लेकिन I want to ask you, God might ask you, what do you have in your hand?
हम लोग कई बार बोलेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं, वचन कहता है परमेश्वर ने सबसे मूल्यवान चीज हमारे अंदर दिया है, वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। God has deposited the most precious oil, the most precious element, the most precious Holy Spirit in you and me। हमारे और आपके अंदर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। Come on, when you have that Holy Spirit in you, never say I have nothing। नहीं, बिकॉज वो पवित्र आत्मा काफी है टू चेंज योर डेड एक्सपीरियंस टू लाइफ। He is enough to change your circumstances. He is enough to do a miracle for you. He is enough to rise up your spirit and bring some new miracles or supernatural work into our lives. वो पवित्र आत्मा काफी है। हालेलुया। आज जितने भी लोग जितने डर रहे, एंजाइटी, आई नो पीपल्स बीपी इज गोइंग हाई। इन दिनों में लोगों का बीपी हाई हो रहा है, डायबिटीज हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पल्स रेट्स बढ़ रहा है। व्हाई? People are feeling weak in their body. People are losing weight. ये सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? Because of fear. इतना डर हमारे अंदर आ गया है। I am telling you, the Bible says God has not deposited a spirit of fear in us. हमारे अंदर परमेश्वर ने जो आत्मा भी है वो डर की आत्मा नहीं है। It is the spirit of strength. It is a spirit of power. It is a spirit of confidence. It is a spirit of faith. It is a spirit of love. हालेलुया। जब वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। हालेलुया। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। जितना भी कुछ होने दो, मेरे घर के बाहर भी कुछ भी होने दो, लेकिन लेट मी बिलीव दैट टिल द टाइम द होली स्पिरिट इज इन मी, माय गॉड्स फेवर, माय गॉड्स ब्लेसिंग, माय गॉड्स अनॉइंटिंग इज ओवर माय लाइफ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहन ने भी कहा, आई डोंट हैव एनीथिंग, यू हैव समथिंग एटलीस्ट हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। वैल्यू इट। गॉड कैन यूज दैट लिटिल, मल्टीप्लाई इट एंड ब्लेस यू इन द डेज टू कम। दैट कैन बी अ सॉल्यूशन टू अस। आमेन। हालेलुया। आगे जब हम बढ़ेंगे तो I'll come back to the same episode. This lady, oh, इतना ऑयल है। So then Elisha tells her, then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. I like that word. वहां पर एलीशा उससे कहता है, अभी तुम्हारे पास इतना ऑयल है, तुम अभी एक काम करो, आप जाकर जितने भी आपके पड़ोसी है वहां से गैदर एम्प्टी वेसल्स। एम्प्टी जो खाली बर्तन है उसे तुम ले आओ। और कितना ले आना है? डोंट बोरो लिटिल बट ब्रिंग मेनी। यानी उसका मतलब है कि तुम थोड़ा लेकर मत आओ, तुम ज्यादा लेके आओ। उसका कई मतलब है। When I was just reading that word, he was so clear. वहां पर says, do not gather just a few, which means if you want to gather more, आप सोच लीजिए, अगर 10 वेसल उसको गैदर करना, इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स, या फिर 10 मिनट में वो जाकर आजू बाजू से 10 बर्तने लेके आ सकता है। लेकिन इफ शी वांट्स टू गैदर मोर, अगर ज्यादा उससे लेके आना है, इट विल टेक हर मोर टाइम, उसे और समय निकालेगा, उसे और एफर्ट्स डालना पड़ेगा। शी मे हैव टू गो टू 15, 20, 30, 50, 100 हाउसेस, और हर एक जगहों पर जाकर शी हैड टू बाय, टेक दोस वेसल्स, एम्प्टी वेसल्स को लेकर अपने घर ले आना था। एंड द बाइबल से शी डिड इट। उसने और उसके बच्चों ने वही किया। They went and they brought as many vessels they can, and all empty vessels. और उसे लेके आने के बाद एलीशा कहता है, जो तेल तुम्हारे पास है, you start pouring it. एक वेसल के अंदर पोर किया, ये एक पाइप जैसा हो गया, एक टैप जैसा हो गया, पोर कर रहा है, एक वेसल भरा, वो वेसल वो बर्तन को हटाया, अगला बर्तन आया, खाली बर्तन, उसको भी भरा, उससे भी अलग किया, अगला बर्तन आया, वो भी खाली किया। They kept on filling it till the time all the बर्तन was full. उन्होंने जितना बर्तन लेके आए, वो कितना बर्तन लेके आए मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे लेके आए। जितना भी लेके आए वो पूरा तेल से भर गया, और आखिरी बर्तन होने पड़ने के बाद वो तेल का गिरना बंद हो गया। There is a secret to it. वहां पर secret is, when God wants to do something, He's looking at your and my
faith, stretching of our faith, हमारा जो विश्वास को हम कितना परमेश्वर में faith को stretch कर सकते हैं, that much is where God's going to pour His favor into our lives. Amen. अगर हम थोड़ा सा faith करेंगे उतना ही आएगा, लेकिन the more I believe, the more I can stretch myself, जितना मैं हो सकूं, मैं मेरा faith को, मेरे विश्वास को, मेरा प्रार्थना को, मेरा वचन का ध्यान को मैं जितना stretch करूं, I'm going to see God's filling that much. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हर एक empty places को भरता है परमेश्वर. Hallelujah. He is a God who fills the emptiness. जहां पर emptiness है वहां पर परमेश्वर भरता है. हमारे जिंदगी में इन दिनों में लॉकडाउन में हम सब हमारे घरों में stretch our faith. अगर इतना विश्वास है उसे और खींचो, जितना खींच सकते उतना खींचो, so that when you see, oh come on, hallelujah, जितना आप stretch करोगे you will see the overflowing blessings, overflowing anointing, overflowing experiences, overflowing God's favor into our lives in the days to come. The more you stretch, the more favor and power of God you will experience in your life. That is what we read from this lady. इस स्त्री के घर में भी पहला हमने देखा थोड़ा सा था, but she did not value it. She thought it is nothing. नहीं, हमारे पास जो थोड़ा है, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, value it, multiply में. God will use that what you have to bless you. वो काफी है. Hallelujah. And second what we see is यहाँ पर हमने पढ़ा हमारा faith को stretch करो इन दिनों में. Don't just agree to all what the world say. मैं ये सबको मैं कहूँगा, हम लोग we just go by what the world say. दुनिया जो कहती है सब हम सुनने के लिए we are ready to accept it. But let's go by what the Bible says. The Bible says my God can change situations in one day. आप सोचो, ये जो कोरोना वायरस का हमने कभी सोचा नहीं था, but it just came like this. Suddenly it happened. Again, suddenly we never imagined. Suddenly it came, and I believe suddenly it will vanish too. मैं वही विश्वास करता हूँ, सडनली आया, सडनली वो निकल जाएगा. The seasons will change. ये जो टाइम है ये बदलेगा. विश्वास कीजिए. इन दिनों में जब हम प्रार्थना करें, उस प्रार्थना के साथ विश्वास भी कीजिए. Stretch our faith to believe over the facts. Stretch our faith to believe over the newspapers. जो न्यूज चैनल्स है, जो न्यूज हम सुनते हैं, उसके ऊपर हमारा विश्वास को हम स्ट्रेच करेंगे, so that we will see God's blessing and His healing and His provision in our life. Hallelujah. आप लोग कोई भी विषय सोचकर डरना नहीं. Hallelujah. हमारे बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारा चर्च के बारे में, कोई भी विषय सोचकर, आपका जॉब के बारे में. Hallelujah. I am telling you, my God can change situations for you. आमेन. आप लोग बोलते रहेंगे पास्टर मुझे पता नहीं मेरा जॉब का क्या होगा, ओ ये जॉब के तो दूसरा जॉब मिलेगा क्या. आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट इन द लॉर्ड. इवन इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस एंड डार्कनेस, माय गॉड कैन डू अ मिरेकल फॉर यू. परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार कर सकता, नहीं करेगा. Hallelujah. Because He is a miracle working God. He works exceptionally in a different way. जब everything looks closed, my God has a new way for us. Hallelujah. That's what we see in all their lives. Moses के जिंदगी में, साराफत का विडो की जिंदगी में, इस विडो की जिंदगी में भी हमने वही देखा. थोड़ा सा था, उसके बीच में भी परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया. Hallelujah. Praise the Lord. तो इन दिनों में विश्वास को स्ट्रेच कीजिए, विश्वास के साथ बढ़ाइए. परमेश्वर आप सबों को आशीष देंगे. God will be with you and God will strengthen you in the days to come. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Come on, let's pray. आइए हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे. Praise the Lord. Father, we come to your presence. We thank you, God, for this wonderful Tuesday evening. प्रभु, इस ये जो 5वां हफ्ते, लॉकडाउन के 5वें हफ्ते में आए प्रभु, पहला दिन से प्रभु एवरीथिंग लुक सो इम्पॉसिबल. एक दिन हमें लिए प्रभु एक असंभव जैसा था, लेकिन प्रभु इतने दिन प्रभु आपने हमें अद्भुत रीति से चलाया. प्रभु जब हम वापस देखते हैं ये कैसा हुआ,
हमें कुछ पता नहीं, लेकिन गॉड यू प्रोटेक्टेड अस ऑल, यू केप्ट अस ऑल सेफ एंड यू प्रोवाइडेड। आपने हमें अद्भुत रीति से अभी तक चलाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। खास करके प्रभु आज जो वचन से प्रभु आज आपने हमसे बात किया प्रभु, हमारे जिंदगी में जो थोड़ा सा है प्रभु वो भी काफी है प्रभु। वो चीज से भी प्रभु आप हमारे लिए अद्भुत कार्य कर सकते हो। सबसे बड़ा प्रभु आपने पवित्र आत्मा में दिया है। Lord, help us to value that spirit. Help us to value that anointing that you have put into our lives, Father God. And above all, Father, as we read, help us to have that stretched faith. हमारा विश्वास को इन दिनों में आप बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम आपसे और बड़े अद्भुत कार्य को देखें, और बड़े चमत्कारों को देखें, और बड़े आशीष को हम पाए। And we will see God's blessings in our life, Father. हर एक व्यक्ति जो आज मुझे देख रहे प्रभु, मैं हर एक के लिए प्रार्थना कर दो। अगर कोई डर में प्रभु, उस डर को तू बाहर कर प्रभु, उस डर की आत्मा को बाहर कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से तू भर दे प्रभु, ताकि हम विश्वास करें कि इस दौड़ में भी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। लॉर्ड, हम पता नहीं है कितने दिन और लॉकडाउन रहेंगे, लेकिन जब तक है प्रभु, हम जहां पर भी है, हेल्प अस टू जस्ट हैव अ हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। प्रभु आप में धन्यवाद देकर, आपकी स्तुति महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम हर एक को तू आशीष कर। एंड वी आर प्रेइंग एंड बिलीविंग लॉर्ड, very soon we will see a change in the situation. We will see these coronavirus completely eradicated, Father, and we will all come back to church and worship you and lift your holy name, Father. We thank you, God, that you heard our prayers. We give all glory to you, Lord. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say amen, amen and amen. Hallelujah. We thank God for this wonderful evening. आप सबों को धन्यवाद कि आपने ज्वाइन किया, and I pray and I hope that you were blessed with the little word. May the Lord continue to keep you strong. Till we meet again, as I always say, stay home, stay safe. God bless you.